Good morning, students. Welcome back to our online sessions of Science Class 9. I hope you and your family will be safe in the pandemic situation. So I requested to you and your family also, if unnecessary, don't go outside your homes. It should be necessary, then go homes by using the use of mask. Always be use sanitizers when you go outside the home while touch any objects. While you come inside the homes, always be after some times you wash your hands within a minimum 20 seconds. I hope you and your family will be safe. So stay home and stay safe. Now we're discussing about the topic of physics in the previous class. Already we're discussing about the let of chapter like chapter number 1 to 5. Almost we have to discussing. Now we today are discussing about the chapter number 8. That is what? That is a part of motion. That we're discussing about today, about the motion. The chapter of motion, slightly we're discussing our previous lecture. If you've seen the previous class of our motion, we're discussing about what is called motion, what is called uniform motion, what is called non-uniform motion, what is the difference between speed, as well as we're discussing about the distance, as well as we're discussing about the displacement. That we're discussing into our previous classes. By using that formation, we're discussing about the distance and displacement by the suitable method. That we're discussing what is called distance and what is called displacement. So, if an object that is covered in a specific length on a specific path in an equal limit of time, that is called distance, and the change into the position, that is called displacement. That we're discussing our previous class. Now today, we're discussing about the new two topics about the scalar quantity, vector quantity, as well as we're discussing about formation of speed, average speed and uniform speed. And also, we have to find the three questions regarding to if you want to find out the average speed having a single distance, two distance and more than two distance, then how we can be find the forms. So before we starting, just I'll revise you first what is called distance, that I'll revise you. So length of path on an object is given period of time, that is called as a distance. Okay. So length of path that is covered by the object in a specific time of interval, that is called as a distance, and the change in position of object in a specific unit of time, so given period of time is called as a displacement. Change in a position, उसके position में change होता है तो हम उसको displacement कहते हैं. Displacement is either be positive displacement, negative displacement और zero displacement. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. Zero displacement भी हो सकता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी वो हो सकता है. लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस नाइदर बी जीरो नॉर बी नेगेटिव. ओके, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव. नाउ फर्स्ट वी डिस्कसिंग टुडे अबाउट द एक्सप्लेन अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? जनरली इफ वी हैव टू बी रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी which required a specific units, like distance is implemented is a meter, centimeter, kilometer, etc. Displacement also be implemented into the meter, centimeter, kilometer. Speed also be measured into the kilometer per hour, centimeter per second, etc. So a specific form of quantity which required the magnitude for its description. So any quantity which generally requires a magnitude, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी. इट डजंट रिक्वायर डायरेक्शन. इफ अ क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे जो मैग्नीट्यूड वाले जो आइडेंटिटीज होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. स्केलर क्वांटिटी डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, विच डजंट रिक्वायर, इट जनरली रिक्वायर्स इट्स मैग्नीट्यूड. So a quantity which requires its magnitude, generally this is called as a scalar quantity. उसको हम scalar quantity कहते हैं, जिसमें मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है. These all are considered as a scalar quantity because this type of quantity doesn't require the direction, it only requires the magnitude. तो जो क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड को ही अगर आइडेंटिफाई करता है फॉर द डिस्क्रिप्शन, वैसे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें मास आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, स्पीड आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है. इस तरह के फॉर्मेशन को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं, बट कहाँ वर्क हो रहा है, विच किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है. दूसरी क्वांटिटी है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? तो ऐसी क्वांटिटी जिसके डिस्क्रिप्शन, द क्वांटिटी विच जनरली रिक्वायर for the description, it requires the magnitude as well as the direction.
जिस क्वांटिटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सारे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ व्हाट? इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आती है, मोमेंटम आता है, टॉर्क आता है। ऐसे सारे क्वांटिटीज़ जो है ना विच रिक्वायर द डायरेक्शन। मोमेंटम किस डायरेक्शन में मोमेंटम है वो चाहिए, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ओके। उसके अलावा अगर आप देखें एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिसका डिस्क्रिप्शन के लिए हमें जो आपका जो डिस्क्रिप्शंस जो है उसमें आपको डायरेक्शन के साथ साथ उसके लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़े, तो उसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो क्लियर कि आप स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? दिस आर द टू क्वांटिटीज अ फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद का जो टॉपिक हमें डिस्कशन करना है वो स्पीड के बारे में। देखिए स्पीड हमें पता है, आप व्हीकल सब ड्राइव करते हैं, साइकिल ड्राइव करते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं स्पीड ड्राइव्स के बारे में, या बहुत तरह के ऐसे प्रैक्टिकल आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे जो स्पीड के रिलेटेड हैं। तो स्पीड तो आप यूज़ करते हैं, हाँ स्पीड में है, पर व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड को हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं? क्या डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो स्पीड है? अभी मैं दौड़ के गया, काफ़ी गाड़ी व्हीकल स्पीड में मैंने दौड़ा है कि 60 to 80, 80 to 100, 120 में बढ़ा रहा तो स्पीड है। बट व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्पीड? हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि ये स्पीड है? व्हाट इज़ द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्पीड इन अ टर्म्स ऑफ फिजिक्स? तो सबसे पहले तो स्पीड के लिए देखिए, तो डिस्टेंस विच इज ट्रैवल बाय अ बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ यूनिट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीड। एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस को कवर किया है, वो उन दोनों के डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं? उसको स्पीड से मेजर करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन टू ट्रैवल। व्हाट द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, व्हाट द एक्चुअली लेंथ ऑफ डिस्टेंस वी कवर्ड, एंड एक्चुअली कवर्ड ऑफ द डिस्टेंस, हाउ मच टाइम दैट विल बी टेकन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled upon time taken to travel the distance, that generally gives the speed, and speed that should be described by the small v, उसको small v से डिनोटेट करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड s, and time taken that is called t, so small v is equal to s upon t, that is the mathematical formula of the speed. So simple definition, how much amount or maybe the how much length or maybe distance, how much distance that covered by the body in a specific unit of time, that is generally described by the speed, and speed is always be distance traveled by the object upon time taken to travel the distance, that is always be represented by the speed. So if a body that travel a distance in a specific s in a specific time interval t, so v is equal to s upon t, that is the general prescription about the speed. So from that formula v is equal to s upon t, ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो से दैट कि स्पीड इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू द ट्रैवल। स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज ऑल्सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वी सी दैट और वी शो दैट कि स्पीड इज व्हाट? इट इज जनरली अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल एंड how much time taken to the distance travel, the ratio of s upon t, that generally described to speed, उसको हम speed से describe करते हैं। Speed is what? Speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity which doesn't require any direction. Speed doesn't require any direction. So speed is generally considered as a scalar quantity, क्योंकि scalar quantity में केवल हमें magnitude की ज़रूरत होती है, which doesn't require any direction. तो speed के अंदर हमें किसी भी तरह की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, which generally requires only the magnitude, इसीलिए स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नाउ अभी स्पीड का ऐसा यूनिट अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर है इम्प्लीमेंटेशन। पहले तो अगर मैं देखूँ डिस्टेंस ट्रैवल को किस में मेज़र करेंगे आप? मीटर में। और टाइम टेकन टू ट्रैवल उसको किस में इम्प्लीमेंट करेंगे आप? सेकेंड में। तो मीटर अपॉन सेकेंड।
स्पीड का अगर मुझे ऐसा यूनिट चाहिए तो मीटर अपॉन सेकेंड, ओके। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड के फॉर्म में आप उसको कह सकते हैं। या स्पीड को अगर आप देखें तो सेंटीमीटर के अलावा भी सेंटीमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, ऐसे अलग अलग तरीके के ऐसे यूनिट्स में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो स्मॉलर क्वांटिटी अगर चाहिए स्पीड की तो सेंटीमीटर पर सेकंड है, लार्जर चाहिए तो किलोमीटर पर आवर है, पर जनरली जो स्पीड होता है स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, मीटर अपॉन सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन दैट इज मीटर अपॉन सेकंड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीड। कि हाउ मच डिस्टेंस दैट ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम दैट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन टू ट्रैवल द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड v अपॉन s by t। तो जनरली स्पीड सजेस्ट्स the ratio of the time taken and the travel of object according to the time taken, that ratio will generally describe the speed. It is a scalar quantity and the SI unit of meter per second। यह स्पीड के बारे में होता है। Now second we discussing about the average speed। एवरेज स्पीड हम किसको कहते हैं? What do you mean by the average speed? देखिए एवरेज स्पीड के लिए उसमें the ratio of the total distance traveled by the object and to travel that distance how much amount of time that taken by the object, it is the ratio of that formation is called as the average speed। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए so the ratio of the total distance divided by the total time, कितना टोटल डिस्टेंस है और कितना टोटल टाइम है, इन दोनों के रेशियोज को हम जनरली किससे डिस्क्राइब करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का भी ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज कॉल्ड एज अ मीटर और टाइम टेकन दैट इज कॉल्ड एज अ एस। तो मीटर पर सेकंड से हम उसको डिनोटेट करते हैं। नाउ एवरेज स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि विच ऑल्सो डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, केवल उसमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हमें फॉर्मूला चाहिए, इफ़ यू वांट टू ऑल्दो द फॉर्मूला फॉर द स्पीड, जो स्पीड का फॉर्मूला है दैट v अपॉन एस बाई टी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। उसी फॉर्मूला का यूज़ जो है हम कर सकते हैं फॉर द एवरेज स्पीड के लिए। बट एवरेज स्पीड के अंदर क्या होता है कि कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड, उसमें एक से ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं, अलग अलग डिस्टेंस दिए होते हैं और वो अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल दिया होता है। तो उन दोनों का एडिशन यानी कि टोटल डिस्टेंस जो S1 S2 S3 जितने भी डिस्टेंस हो उसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय उसके लिए जो टाइम लग रहा है T1 T2 T3 उन सबको ऐड करो, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, उससे भी आप एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्पीड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इंटरवल्स ऑफ द स्पीड, स्पीड का जो इंटरवल्स पे आप कैलकुलेट करते हैं उसको हम एवरेज स्पीड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एवरेज स्पीड, राइट। उसके बाद एक तीसरा आ रहा है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, देयर इज नो एनी चेंजेस, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। दे हैव नो एनी चेंजेस इन देयर स्पीड इन द टाइम, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। सो इफ अ बॉडी इन अ मोशन, if a body in a motion that travels equal distance in an equal interval of time, so it is said to be moving with the uniform speed। अगर स्पीड है यानी कि क्या है? मोशन है। इफ ऑब्जेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ स्पीड, अगर मैं दौड़ रहा हूँ यानी कि मैं किस फॉर्म में? मोशन के फॉर्म में हूँ। व्हीकल चल रहा है तो किस फॉर्म में है? मोशन के फॉर्म में। सी इफ अ बॉडी दैट मूविंग इन अ फॉर्म ऑफ मोशन हैव implement a certain distance or maybe make a equal distance in a equal interval of time, so that type of motion is called as a uniform motion, जिसमें किसी भी तरह का changes ना हो, जिसको हम constant form में कहते हैं। So during the uniform motion, speed and the speed also be remain same, and to calculating the time interval always be same. The time interval for the specific interval of speed always be same, उसको आप यूनिफॉर्म स्पीड कहोगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। इफ अ कार ट्रैवल्स 40 किलोमीटर्स इन फर्स्ट 30 मिनट्स, इन अ 30 मिनट्स कार ट्रैवल्स 40 किलोमीटर्स, in the next 30 minutes it also covers 40 kilometer, also in the next 30 minutes is called 40 kilometers. So each and every time having a specific interval of time and cover the specific interval of duration। 30 मिनट्स में 40 किलोमीटर हर बार अगर वो कवर कर रहा है, तो इफ इन अ बॉडी ऑफ अ मोशन दैट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो उस तरह के स्पीड को आप क्या कहोगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हो, उसको आप यूनिफॉर्म स्पीड से कैलकुलेट करोगे। क्लियर कि एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड क्या है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है।
अभी तीन क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उसको मैं एवरेज स्पीड के फॉर्म में डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मुझे उसको एवरेज के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है देन हाउ आई कैन बी डिस्क्राइब दैट फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल डिस्टेंस। अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल डिस्टेंस तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट आई रिक्वायर। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अ कार दैट ट्रैवल और मे बी अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, a car that travels a distance of 240 kilometers in a 4 hours. In a 4 hours, the car that covers a 240 kilometer, एक केवल सिंगल पॉइंट है। पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो पहले का आंसर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर, अ कार दैट ट्रैवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन a car that travels 240 kilometers in 4 hours, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एक सिंगल बेसिस ऑफ डिस्टेंस है, केवल 4 आवर्स, सिंगल डिस्टेंस 4 आवर्स और 240 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड करना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, राइट। सो दैट इज व्हाट, S1 अपॉन T1, S1 अपॉन T1। सो टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको समझा है कि कार दैट ट्रैवल्स 240 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस तो 240 है और टोटल टाइम कितना है 40, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दैट शुड बी 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो सिंगल बेसिस पे हुआ कि एक ही मेरे पास डिस्टेंस और एक ही मेरे पास टाइम है। बट अगर सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में एवरेज स्पीड फाइंड करो 2 डिस्टेंस पे, तो मैं उसका 2 डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज करता हूँ। कार दैट ट्रैवल्स 80 मीटर इन 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 60 मीटर इन 7 सेकेंड। 2 डिस्टेंस हो गए और 2 टाइम हो गया। मैं आपको समझा दूँ, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अ कार ट्रैवल्स 80 मीटर, ओके, 80 मीटर इन 5 सेकेंड और नेक्स्ट में 60 मीटर इन 7 सेकेंड। इन्हें 2 अलग अलग टाइम हो गए। पहला अगर आप देखोगे तो सेकेंड के लिए V1 पहला 80 मीटर है और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। दूसरा V2 कितना है आपके पास 60 मीटर है और उसके लिए टाइम कितना लग रहा है 7 सेकेंड, ठीक है। तो दो बेसिस डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करना है, तो 2 बेसिस डिस्टेंस हो गए, 2 अलग अलग डिस्टेंस, 2 अलग अलग टाइम। तो मुझे इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा और दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 80 + 60 डिवाइडेड बाई 5 + 7, 140 डिवाइडेड बाई 12, 140 डिवाइडेड बाई 12, तो 11 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आए मैं 11.67 लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आंसर आपका यहाँ पे मीटर में और सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। तो क्लियर। तो एवरेज स्पीड अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस जो भी दिया है और वो टोटल डिस्टेंस के रिगार्डिंग हमारे पास जो टोटल टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट जनरली गिव्स यू द एवरेज स्पीड। तो ये पहला क्वेश्चन था सिंगल बेसिस के लिए, दूसरा क्वेश्चन था 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। तीसरा जो है उस पर हमें क्या करना है, मोर देन 1। तीसरे जो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको जो दिया है उसमें क्या मैंने बोला है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 2 डिस्टेंस, यानी कि आपके पास अलग अलग वेलोसिटी होनी चाहिए, अलग अलग टाइम इंटरवल भी होना चाहिए। सो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को अलग से चेंज करते हैं कि स्पीड लेट आई मूविंग ऑन अ मोटरसाइकिल ऑन द रोड, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, अपने रोड पे गाड़ी पे व्हीकल पे मूव कर रहा हूँ। सो पहले 10 मिनट के अंदर मैं 40 मीटर्स को कवर करता हूँ। इफ आई सी दैट 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 80 किलोमीटर पर आवर और लास्ट में है 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे 3 अलग अलग मेरी गाड़ी की स्पीड है और तीनों के लिए मेरे पास टाइमिंग है 10 10 10। पहले 10 मिनट के अंदर स्पीड मेरी 80 किलोमीटर पर आवर होती है, नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर
और नेक्स्ट 10 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अलग अलग मेरे पास टाइमिंग है और डिस्टेंस है। तो 3 अलग अलग स्पीड है आपके पास, V1, V2 और V3। एक आपके पास है 80 किलोमीटर पर आवर, एक है 50 किलोमीटर पर आवर और एक है 30 किलोमीटर पर आवर। तीन के लिए मेरे को टाइमिंग लगता है 10 मिनट्स, T1, T2, T3, 10 मिनट्स। यहाँ भी 10 मिनट्स, यहाँ भी 10 मिनट्स, यहाँ भी 10 मिनट्स, राइट। सो मोर देन वन बेसिस के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आंसर आपको आवर्स में दिया है, किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो मिनट में है। तो ऐसे सिनारियोज में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है, सॉरी S1 S2 S3, हाँ V1 नहीं, S1 यानी कि डिस्टेंस, S1 प्लस S2 प्लस S3। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, क्वेश्चन में स्पीड दिया है कि पहले 10 मिनट मैं 80 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा हूँ, नेक्स्ट 10 मिनट में 50 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा हूँ, नेक्स्ट 10 मिनट में 30 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा हूँ। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड के लिए फाइंड करना पड़ता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू S अपॉन टी। पर हमारे पास S नहीं है, V है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू टी। S इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू टी, टाइम इंटरवल T। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब में 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 हो जाएगा। 60 मिनट्स में मतलब 1 आवर, तो 10 मिनट्स मतलब क्या? 1/6 आवर हो गया। तो 1/6 आवर्स यानी मिनट को जो आपका स्पीड है 50, 80 और उससे आपको ऐड करना पड़ेगा 40, 50 और 30 को, ठीक है। तो आपको पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ 40 किलोमीटर का स्पीड है, 80 किलोमीटर का स्पीड है या जो भी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा 1/6 कॉमन लेके 80 प्लस 50 प्लस 30, राइट। 80 प्लस 50 प्लस 30 और नीचे 3 अलग अलग टाइमिंग है, तो 3 इंटू 1/6 से डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/6, राइट। अभी आप इसको सॉल्व कीजिए। 80 प्लस 80 160 हो जाएगा। 160 को 6 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए। आंसर अप्रोक्सीमेट आपका जो भी आएगा वो आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे आप एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। So if you want to find out the average speed always be equal to the total distance travel divided by the total time taken। उससे आप average speed को find out कर सकते हैं। Clear? So I hope the students you easily understand the today's topic, what is called speed, what is called average speed, what is called uniform speed, and how we can be find the average speed on the single basis distance, on a 2 basis distance, and a more than 2 basis of distance. If there is a no distance is given, then how we can be find the distance and then find the average speed. So I hope कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। Tomorrow we'll discussing about the more detail in a part of the velocity and acceleration. So keep revising, keep studying, and take care. Stay home, stay safe. We'll meet tomorrow with the next topic about the velocity and acceleration. Take care. Bye.